A very warm good morning to everyone, dear student. Now, welcome back in today's class. Dear student, you know that in previous class we discussed or we finished our third chapter. Now, next in today's class, after that, we are going to start the new chapter, that is the fibers, fabrics, and clothing. Means here we are discuss about the fibers, the different fibers that we are derived or we are getting from the plants and animals, and what are the process by which this fiber is passed and it forms a fabric, and from that fabric how this clothing or clothes are made. So we are discuss about the animal heads, wool, then the rearing and breeding of the sheep, means how this sheep, because we know that this animal sheep and other animals are the main source of water. Wool, we are getting wool from these animals, these are the animal source. So हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इनको किस तरह से अच्छी तरह से हम उसको रखें, उनका पालन पोषण करें और उनकी ब्रीडिंग करें और अच्छे से अच्छे वैरायटी की जो है वो sheep develop करें, ताकि we are getting the good quality of wool and then make the good quality of clothes. And also we discuss about the silkworms, rearing and extraction of silk, कि silkworm को कैसे पाला जाता है, उसको कैसे के silkworm से कैसे silk को extract किया जाता है, अलग किया जाता है, separate किया जाता है. And also we discuss about the some associated the health hazards, problems of the worker who are working in a field of this silk and in the field of this fabrics or in a industries of सिल्क और सिल्क इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, जो काम करते हैं, उनके हेल्थ से प्रॉब्लम, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ रिजार्ट से कौन कौन सी उनको बीमारियाँ हो सकती है, क्या प्रॉब्लम होती है, उनके बारे में भी वी आर डिस्कस मोर इन डिटेल इन दिस चैप्टर. सो नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनिमल्स दैट लिव इन वूल. So generally, now you see that the many animals like the llamas, alpacas, sheep, Kashmiri goat, Kashmiri rabbits, ये कुछ ऐसे animals है. These are the some animals from where we are extract, we derive water, wool. कि ये animals है जिनसे हमें ऊन मिलता है, wool मिलता है, और उनसे फिर उनको उनके फाइबर से हम फैब्रिक और क्लोथिंग बनाते हैं. So now everybody see in your textbook we are going to explain in detail about this all things from a textbook. We are taking the help of textbook because textbook से ही आपको क्या अच्छी तरह से समझ में आएगा कि textbook के वर्ड बाय वर्ड अपन यदि एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट behind this fibers, fabrics and clothing. So now you see everybody page number 40. The animals like the llamas, alpacas, this wildebeest and the guanacos, sheep, Kashmiri goats, Kashmiri rabbits. These all are the animals that gives wool. These animals live in cold areas, and you see that these all the animals are mostly found in where, in which places? In cold places. Means mostly these are found in Himalayan areas or Tibetan or cold regions. जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे ये मोस्टली ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे एनिमल्स जिनके जो ठंडे प्रदेशों में होंगे उनके बॉडी पे क्या होंगे, ये फर होंगे, वूल होगी, जो उनको क्या वार्म या गर्म रखता है. ओके, इफ मीन्स यहाँ पे जस्ट लाइक राजस्थान, इंडिया टॉकिंग और राजस्थान, तो यहाँ पे ऐसे एनिमल्स नहीं होंगे जिनके बॉडी के ऊपर वूल होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतना हॉट है, गर्म है ना, और ऊपर से उनके ऊपर यदि वूल हो जाएगी तो वो गर्मी के मारे ये भी मर जाएंगे. तो मोस्टली दीज आर फाउंड इन द कोल्ड रीजन. Okay, so these wool yielding animals wear the densy hair on their bodies. इनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ये wool होती है, ऊन होते हैं, hair होते हैं. Hair traps a lot of air which is a poor conductor of heat. और क्या करता है, ये जो हेयर होते हैं, wool होती है उनकी बॉडी के अंदर, ये एयर को ट्रैप करती है, और ट्रैप क्या करता है, एक इंसुलेशन का काम करता है. सो इट्स बिकेम अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और इसीलिए उनकी गर्मी बची रहती है, तो गर्म अपने बॉडी को
गर्म रखती है. So it's a type of water adaptations that are mostly found in the animals found in the colder areas or in the colder region. Wool is derived from these, therefore the hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers, और इन्हीं एनिमल्स के फाइबर से ही हमें ऊन प्राप्त होता है. The main source of the wool in our country is the several breeds of the sheep. अलग अलग हमारे कंट्री में भी, हमारे देश में भी अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के, देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ the varieties or species of sheep is there from where we extract or we derive water wool in our country. The sheep wool is obtained from the fish. Wool is protein, and this wool is a part of a protein. When if you burn it, it gives the smell like a protein, burning of a protein. इसलिए if you want to taste confirm about the presence of a protein in this hair or this wool, so आप burn करो तो it gives a smell like a burning of a protein. It is a fine, long, plastic fiber, unlike the cotton, which is carbohydrate and plant fibers. Now here in the table, this page number 41 पे आप, if you can see in your textbook, when a table is given there, here the name of sheep breeds is given there and quality of the wool and state where it is found. So first लोही एक breed है, species है ना, एक sheep का एक प्रजाति है ना. ये इसकी जो वूल होती है वो गुड क्वालिटी की वूल होती है. मोस्टली दिस इज फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब. फिर रामपुर बुशेयर से ब्राउन फ्रीश होती है, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में होता है. ये नली इज कारपेट वूल होती है. इसे ये दिस इज राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब इस स्टेट में पाया जाता है. देन काकड़वाल इज ए स्पीसीज और ब्रीड और प्रजाति है एक तरह से किसकी, शीप की, विच इज मोस्टली commonly known for what, for a woolen shawls, जिससे शॉल्स बनाई जाती है. मोस्टली दिस आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. मारवाड़ी, इसकी जो ऊन होती है थोड़ी सी रफ होती है, कोर्स होती है, कोर्स वूल होती है, रफ वूल होती है. दैट इज मोस्टली फाउंड इन गुजरात एरिया. एंड पतनवाड़ी, इट इज फॉर द होजरी आइटम्स, इट इज ऑल्सो फाउंड इन गुजरात. नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. Rearing and breeding of sheep. What are the things or what are the most appropriate things we keep in our mind when we are rearing and breeding of sheep? यानी उनको पालन पोषण के ब्रीडिंग से रिलेटेड, उनको किस तरह से किस प्लेस पे रखना चाहिए, किस क्लाइमेट में रखना चाहिए, कैसा खाना उनको देना चाहिए, किस तरह से इनकी केयर करनी चाहिए, इनकी ब्रीडिंग को कैसे अपन इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस ऑल थिंग्स वी आर स्टडीइंग दिस रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ sheep. Now you see in your textbook, the sheep start yielding wool at the age of 5 months. यानी 5 मंथ के बाद ही, जन्म के 5 मंथ के बाद ही वो वूल देना स्टार्ट कर देता है. The hairy skin of the sheep has 2 types of the fibers that forms its fleece. A coarse beard hair and a fine soft under the hair close to the skin. यानी ऊपर वाली जो होती है वो रफ होती है और उसके नीचे जो होती है वो फाइन वूल होती है. तो दो डिफरेंट टाइप वेराइटीज ऑफ वूल फाउंड in a fleece. One is the beard hair or coarse type, and second one is soft or finer type. The fine hair provides the fibers for making wool. Some good breeds of sheep causes only the fine under the hair. Certain breeds कुछ ऐसी होती है जिसमें सिर्फ बिल्कुल फाइन कलर की, फाइन बिल्कुल सॉफ्ट वूल ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोर्स होती है, जैसे मारवाड़ी है, गुजरात में जो पाई जाती है, पतनवाड़ी है. इनकी जो होती है वूल होती है, जो ऊन होती है वो रफ होती है. ओके. और वो मोस्टली फिर जो है वो कोर्स वूल या होजरी आइटम्स या कारपेट इस टाइप के बनाने होते हैं. उसके फिर मुलायम ये होल्स नहीं बनते हैं. ठीक है. Certain breeds of the sheep have a thick coat of hair on their bodies which yields good quality of wool in large quantities. Such sheep are produced through the selective breeding. और कुछ ऐसे होती है कि सेलेक्टिव हाई हेल्डिंग वैराइटीज यानी क्रॉस ब्रीड या क्रॉस ब्रीड के थ्रू अपन क्या करते हैं, एक ऐसी वैराइटीज वी कैन डेवलप विच गिव्स ओनली द फाइन एंड फाइन quality of the wool in a large quantity.
So that is possible by the hybridization, okay, or a cross breeding, जो cross breeding के through या hiding varieties के through ही possible है. Sheep are reared in many parts of our country for the wool. Local shepherds, ये हमारे different parts में, कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है ना, हिमाचल प्रदेश है, जो शेपर्स होते हैं, गडरिया होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उनको पालते और इन्हीं से जो वूल और जो कुछ बनता है उनको ही सेल आउट करके दे कैन सर्वाइव देयर. सो दिस वूल bearing animals either in a hilly region like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim, or in the plains like Haryana, Rajasthan, Punjab and Gujarat. These are some areas where mostly the sheep shepherds rear these sheep for their survival or for the wool. They take their herds for the grazings. Sheep and sheep are what you know that sheep are the herbivorous animals. They mostly depends on the plants or grass or leaves. A part of the grazing, the shepherds also feed them on the mixtures of the pulses, corn, sorghums, jowar जैसे है, oil cakes है, material left over the oil extract, oil को निकालने के बाद में जो पीछे बच रहा है ना, वो ऑयल केक होता है ना. तो इसके साथ साथ में ग्रास और लीव्स के साथ साथ में भी इनको कुछ अच्छा खाना भी ना, पल्सेस प्रोटीन वाला खाना देते हैं, कॉर्न देते हैं, अनाज देते हैं, शलगम से जवार है, ऑयल केक है, ये भी इनको देते हैं. ये मोस्ट न्यूट्रिटिव्स एलिमेंट्स और फूड एलिमेंट्स ऑफ दिस शीप्स. एंड मेन इन विंटर द शीप्स आर कैप्ट इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स एंड ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर्स. और विंटर में जब विंटर सीजन होती है तब उनको अंदर ही रखा जाता है एंड दे गिव्स वाटर. दे डिपेंड्स ऑन द लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर्स. एट द इंटरनेशनल लेवल द वूल फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वूल. कि यदि इंटरनेशनल मार्केट में देखो सबसे बेस्ट जो क्वालिटी की वूल आती है दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड दैट इज कॉल्ड द पश्मीना वूल. पश्मीना वूल दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पश्मीना गॉट, जो हमारे कश्मीर में भी है, उसी क्वालिटीज़ का जो है. एंड दिस एनिमल्स ऑल्सो गिव्स मीट, मिल्क एंड हाइड. इसके अलावा इसकी जो चमड़ी है, मीट है या दूसरे इनके पार्ट्स दे ऑल्सो यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्रॉम फाइबर टू वूल एंड क्लोथ्स, कि किस तरह से एक फाइबर से, वूल से जो है वो क्लोथ्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है. सो द वूल यूज फॉर द नाइटिंग स्वेटर्स और फॉर द वीविंग्स द शॉल्स. इट इज फिनिश्ड अ प्रोडक्ट ए लॉन्ग process, means it's passes through the long process, different process, different steps is there. So from all the steps when this wool passes, this fiber is passes, then finally it transform or change into the clothes. यानी कि काफ़ी सारी ऐसी प्रोसेस होती है, प्रोसेस के से गुजरना पड़ता है उस वूल को, और उसके बाद फाइनली उनके फाइन क्या बनते हैं, फाइनल थ्रेड्स बनते हैं, और उसके बाद उसकी वीविंग होने के बाद में फाइनली क्लोथ्स बनते हैं. तो बहुत सारी इसमें प्रोसेस होती है. सो व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस ऑल फॉर्मेशन ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द वूल. सो फर्स्ट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड shearing. फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड shearing. मीन्स shearing मीन्स व्हाट द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ शीप. जो शीप है या जो भी एनिमल्स है उनकी बॉडी से वूल को रिमूव करना, हटाना, ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट shearing. नाउ यू सी एवरीबडी इन योर टेक्स्ट बुक, तो इसमें क्या होता है, रेजर्स होते हैं, मैकेनिकल रेजर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजर्स होते हैं, जिनसे या फिर सीजर्स होते हैं नॉर्मली रूरल एरिया में, जिनसे जिसे हेयर कटिंग करते हैं इस तरह से काट के सेपरेट किया जाता है. सो वूल इज रिमूव्ड फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी बाय द लॉन्ग sharp razor manually by the hand or by the electrically or mechanically. This process is known as a shearing. So now the shearing means what? The removal of this wool from the body of a sheep by the razors manually or mechanically or electrically. This is called what? Shearing. Now this shearing usually does not hurt the animals in any way. The reason is that the end of a hair are
dead along the roots of the hair are alive and growing. यानी ये जब भी अपन शेयरिंग करते हैं तो कुछ बात का ध्यान रखना है कि ऐसा शेयरिंग करना है कि उसको कुछ चोट नहीं पहुँचे। यदि अपन उसको चोट पहुँचा, हर्ट कर रहे हैं, तो वो जो उसकी रूट होती है, वो रूट ही थी, वो उसको हर्ट पहुँच गया, तो वो वापस से क्या होगा, वापस से ग्रो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसके रूट, उसके बिल्कुल रूट पे किसी तरह से कोई भी चोट लग गई तो वहाँ से वो क्या होगा, वो वूल जो है वो फिनिश टेस्टर हो जाएगी और वो फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे बाल हमारे जड़ जाते हैं ना, वैसे वैसे उसकी बॉडी से भी वो जड़ जाएगा। ओके, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन our hair is cut, it does not hurt, but if the hair is pulled, it does कि जैसे हमें हेयर कटिंग होती है तो हमें दर्द नहीं होता, लेकिन वो जब खींचते हैं कि उसमें खिंचाव होता है किसी तरह से, तो क्या होता है, हमें दर्द होता है। तो सेम थिंग हैपन विद व्हाट दिस sheep or animal also. So once a year, usually during the warmer weathers, the sheep are gathered for the shearing. और साल में एक बार, once in a year, when it's a time for a very hot during the warmer condition, समर सीजन में, गर्मी के सीजन में क्या करते हैं, सभी पेड़ को इकट्ठे करके फिर शेयरिंग की जाती है उसके बॉडी से, क्या ये वूल जो है वो सेपरेट किया जाता है कि उनको भी आराम मिले, है ना, गर्मी इतनी नहीं लगे और हमारा भी काम बन जाए। ओके, सो दिस इनेबल्स द शीप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव coat of hair. The hair of the sheep grows again just as our hairs does. और जैसे एक बार हटा दिया, जैसे हमारे नाखून और बाल जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी भी वापस से ये वूल जो है अपनी बॉडी पे ग्रो करता जाता है। Once the sheep may yield between the 6 and 18 pounds of a fleece, यानी साल में एक बार उनके 6 से लेकर 18 पाउंड के बीच में, मीन्स ऑलमोस्ट 2.7 to 8.2, यानी 2 kg से 8 kg के बीच में जो है वो उसकी क्वांटिटी आती है। नाउ नेक्स्ट वन, ग्रेडिंग और शॉर्टिंग। मीन्स ग्रेडिंग किस तरह से की जाती है, शॉर्टिंग कैसे की जाती है। ग्रेडिंग है शॉर्टिंग, मीन्स हाउ दिस इज द ग्रेडेड और शॉर्ट आउट, उसको कैसे सेपरेट किया जाता है, शॉर्ट आउट किया जाता है, ग्रेड किया जाता है। ग्रेडिंग इन्वॉल्व्स द शॉर्टिंग फाइबर्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, बिकॉज यू नो दैट दिस ग्रेडिंग इज गिवन और शॉर्टिंग इज डन बाय ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्वालिटी, किस क्वालिटी के है, अच्छी क्वालिटी के है तो उसको है ना अलग ग्रेड में रखेंगे, उसको शॉर्ट आउट करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं और अच्छी क्वालिटी के, फाइन क्वालिटी होती है, उसको सेपरेट करते हैं, कोर्स क्वालिटी, रफ क्वालिटी, दैट कैन बी सेपरेटेड बाय द फाइन क्वालिटी लाइक दैट। So this grading and shorting is based on the quality. This is based on what, क्वालिटी, क्वालिटी के बेस पे अपन ग्रेडिंग करते हैं, उसका शॉर्टिंग करते हैं, उसको अलग करते हैं। द रॉ वूल इज देन ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द एनिमल्स बॉडी फ्रॉम वेयर द वूल हैज बीन ऑब्टेन्ड। अ फ्लेश ऑफ द सेम ग्रेड आर कंप्रेस्ड एंड पैक्ड इनटू द बंडल्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज। फिर एक ही टाइप की सेम ग्रेड की, यानी फाइन क्वालिटी की है या लॉन्ग लॉन्ग हेयर है, तो वो एक क्वालिटी को उनको बंडल्स बनाए जाते हैं और बंडल बनाने के बाद देन इट इज सेंड टू द फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स एंड दैट नेक्स्ट स्टेप इज द सॉइल। फर्स्ट वन, सेकंड वन और द सॉइल। थर्ड वन steps of this is what, scoring. Scoring, this before yarn can be the spun, the raw wool has been scored by the removing dirt, grease and sweets. यानी इसमें scoring का मतलब होता है whatever the impurities, remove impurities. Like dirt, oil, etc. These things can be removed. So scoring means to remove the unwanted things or this dirt, oil, grease, sweat is removed from this wool. So this process is called what, scoring. So this can be done. This can be done by the 3 different processes. First one is a washing.
rinsings and drying. So this can be done by the washing, rinsings, and then the third one is drying. So these are the three processes involved in the process of scrubbing to remove this dirt or grease and the sweat. इन तीनों चारों चीज़ों को इनमें से हटाने के लिए अगर वॉशिंग करते हैं, धुलाई करते हैं, फिर रीनिंग करते हैं या फिर ड्राइंग करते हैं, सुखाते हैं, जिससे क्या होता है, we can able to remove this impurities from the flesh or from the wool. So washing is done the many times through the machines, and then the flesh is rinsed and squeezed through the rollers to the dry. यानी काफ़ी बार उसको पानी से या साफ धोया जाता है, उसके बाद में उसको स्क्वीज करके रोलर से ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है. Then after the lanolins, a kind of the grease is a byproduct of this process, and it is purified for use in the manufacturers of the cosmetic soaps and other household product. यानी उसमें से एक lanolins एक kind का grease है जो एक बाय प्रोडक्ट है, that is by this process of washings, and this can be used in the purified forms to manufacture the cosmetic items and soaps and other household items. The fibers can be dyed in the various colors as the natural flesh of the sheep and goats is black, brown and white. क्योंकि mostly naturally तीन blue this black, white and brown color is there. या तो black color होता है या brown color या white color होता है. तो उन तीनों कलर को क्या करना, चेंज करने के लिए उसको डाई किया जाता है, मीन से डिफरेंट वेरियस डाई किए जाते हैं, कलर किए जाते हैं, ताकि वो अलग अलग वेराइटी वाले कलर में अवेलेबल हो सके. Now the clean wool now needs to be the further processed before being the spun into the woven or roasted yarn. Woolen yarn is more bulky and hairy and is used items such as the carpets and nightwear. Roasted, this yarn is stronger, it's more tightly spun and smoother looking than a woolen yarn. As example of this modern use in the making of clothes for warm suits and blazers is there. Next one, the next process is a carding. इसके बाद जो process है carding. This carding क्या process होता है? Now you see everybody page number 43, the process carding. After the scoring, another round of the sorting is done. कि scoring के बाद उनको dirt जो भी गंदगी थी उसमें से उसको हटाने के बाद में एक बार फिर again क्या होता है? Again इसकी sorting होती है. The sorting or this grading again can be done. The hairy skin is sent to the factory where hair of different textures are separated or sorted. The small fluffy fibers called burrs. और इसमें से जो बड़े और छोटे छोटे hairs होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं. बड़े बड़े जो फाइबर्स होते हैं उनको अलग सेपरेट किया, शॉर्ट होंगे वो अलग. सो द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर कॉल्ड बर्ड्स. यानी छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं उनको तो बर्ड्स कहते हैं. विच समटाइम्स अपीयर्स ऑन योर ओल्ड स्वेटर्स. The fibers are spoiled again and dried. This is the wool ready to drawn into the fibers. और इसके बाद अब जो है वो बड़े बड़े अलग कर दिए, छोटे छोटे अलग कर दिए, ठीक है. फिर वापस एक बार ग्रेडिंग की जाती है, इसको है ना स्कोरिंग की जाती है. देन उसके बाद बिल्कुल ये फाइबर्स इज रेडी टू ड्रॉ इनटू द फाइबर्स. द फ्लेश नीड्स टू बी कार्डेड बिफोर इट कैन बी स्पन इनटू द यार्न. यानी इसको यार्न बनाने से पहले इसको कार्डिंग की जानी चाहिए, इसको सेपरेट करना चाहिए. द कार्डिंग इज कंप्लीट. आफ्टर दैट द फाइबर्स आर रेडी टू स्पाइनिंग, आफ्टर विच दे आर destined to be the woven into the roasted cloth. Then combing. Next process is combing. Next this process fifth
steps or process is combing. In these steps the fibers are straightened, कॉम्बेट्स एंड रोल्ड, इनको सीधा किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है और रोल्ड किया जाता है इनटू द यार्न, जैसे धागे होते हैं धागे के ऊपर ऐसे से रोल्ड किया जाता है. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू द वूल फॉर द स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन फॉर वुवन इनटू द अदर वुवन क्लोथ. जो लंबे लंबे होते हैं वो स्वेटर्स के लिए और छोटे छोटे होते हैं जो फाइबर्स होते हैं यार्न होते हैं वो किसी और आइटम्स के लिए उनको रोल किया जाता है. कॉम्बाइनिंग टेक्स आउट द शॉर्टर फाइबर्स ऑल्सो कॉल्ड नॉल्स. यानी कॉम्बाइनिंग का मतलब क्या है, शॉर्ट शॉर्ट जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे धागे होते हैं, उनको सेपरेट करके रोल्ड करना होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट नॉल्स. इट ऑल्सो लाइन्स अप द लॉन्गर फाइबर्स पैरेलल विथ वन अनदर इनटू द स्लीवर्स. दिस इज देन wound into the ball called a top which is ready for the spinning. और मीन्स इसको फिर एक तरह से रोल्ड करके एक बॉल सा बनाया जाता है एंड दैट इज रेडी फॉर वाटर स्पिनिंग. देन आफ्टर दिस इज सिक्स प्रोसेस इज स्पिनिंग. एंड आफ्टर दैट वीविंग. The last final finishing and these all are the processes are involved in this formation of fiber to cloth or wool to cloth. So spinning, during the spinning process the fibers are twisted into the long continuous threads to the yarn. यानी लंबे लंबे धागे आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किए जाते हैं और स्पाइनिंग की जाती है, उससे यार्न और धागा बनाया जाता है. टुडे स्पाइनिंग कैन बी डन ऑन द वैराइटीज ऑफ मशीन्स, डिपेंड्स ऑन द वेदर द यार्न इज डेस्टिनेड टू बिकम अ वुलन और रोस्टेड क्लोथ. अलग अलग स्पाइनिंग की जाती है. देन वीविंग जो है वो हैंडलूम्स में भी होता है और पावर लूम्स में भी होता है. In a handlooms weavings, the layers built by the slowly and are beaten down to make a fabric. The modern machinery can done this job faster and that can make a wider piece of fabric than was previously possible. The two sets of the threads are used in weaving. यानी दो सेट्स धागे होते हैं वो वीविंग में काम में लिए जाते हैं, जो मोस्टली हैंडलूम से भी होता है और पावलूम्स होते हैं. आजकल मोस्टली जो है मॉडर्न टाइम में वी यूज द पावलूम्स. पावलूम्स मीन्स जो ऐसे लूम्स, द टाइप ऑफ लूम्स विच वाटर रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं. द सेट्स ऑफ द threads are used for the weavings. One, the wrap is put onto the looms in the parallel lines and the other are wrapped is taken between the wrap threads. The partners, these patterns and textures. The patterns and textures are created by using the different color yarn and by तो different टाइप के इसके जो patterns है ना, textures है, वो जो कलर जो क्रिएट किया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन यूजिंग द डिफरेंट कलर ऑफ yarn by the varying the number of wrap and what wrap threads gone over the item. यानी कितने धागे को उसके नंबर्स और उनकी क्वांटिटी और कलर को चेंज करके हम डिफरेंट पैटर्न्स और टेक्सचर्स बना सकते हैं. देन फिनिशिंग लास्ट सेकंड लास्ट प्रोसेस है. सरफेस फिल और द टेक्सचर्स इज improved during the finishing. Nowadays there are many mechanized ways in which this great variety finish can be created. Then knitting is the woolen yarn can be knitted manually or through the machines to make sweaters, mufflers. नेक्स्ट और लास्ट जो है फिनिशिंग के बाद में अच्छा सा उसको टेक्सचर से लुक दिया जाता है. देन फाइनली जो है वो नाइटिंग्स होती है. नाइटिंग यानी उसको गूंथना और नाइटिंग के थ्रू जो है वो धागे को गूंथ के उनसे स्वेटर्स है, मफलर है या दूसरे आइटम्स बनाए जा सकते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइबर्स और फ्रॉम अ वूल टू लास्ट क्लोथ. किस तरह से एक वूल जो आती है उसमें से किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करके उसमें से डर्ट और गंदगी को निकाल के इसके लंबे लंबे थ्रेड्स बना के उसको क्वालिटी दे के टेक्सचर्स दे के फिनिशिंग करके फाइन टेक्सचर बना के फाइनली उससे किस तरह से कपड़े या गर्म कपड़े स्वेटर्स या मफलर बनाए जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. ऑल 9 processes, very important processes in the formation manufactures of this clothes from the fiber wool.
So I hope you guys everybody understood very well, and please everybody you go through this all things from your textbook. आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा. So if you have any doubt in your mind, you can ask to me anytime. You are free to ask me. Okay. So once again, thank you. Have a nice day.